Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. I hope you are also enjoying English learning. In last lecture, in revision lecture, I explained you what is point of view. Here, unit 4 is my point of view. This is a newspaper report. Last chapter was a newspaper article. Fourth chapter is a newspaper report. Now, what is a report? Report is based on the incident which describes each and everything of that incident. Here, the sightings of UFOs is the topic and the report is given on that topic. फैक्ट्स भी दिए होते, उस टाइम पर क्या हुआ है वो भी दिया होता है एंड एनालिसिस भी दिए होते, दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट. सो हियर द रिपोर्ट इज ओवर 100 UFO sighted in India. डू यू नो व्हाट इज UFOs, एलियंस, और ये सब तो आप लोगों ने सुना है. UFOs है वो फ्लाइंग सॉसर, अगर नाम सुना हो तो. ओके, UFOs को फ्लाइंग सॉसर्स भी कहते हैं. जादू क्रिश मूवी देखी होगी, उसमें जो जादू आता है जो अदर प्लैनेट्स से, वो एलियन है, और वो जिसमें आता है वो फ्लाइंग सॉसर या UFOs के नाम से जाना जाता है. These are only the myths. What is the fact? We don't know. Okay, so let's start with the chapter My Point of View, in which activity 1 is given a newspaper report named over 100 UFOs sighted in India. यानी कि इंडिया में देखे गए 100 UFOs. And this report was published in DNA. DNA means Daily News and Analysis. Students, here you have to note down the full form of the words which I am giving you. These are not the meanings, they are the full forms. For example, all the capital letters are given: DNA, IST, PTI, then DRDO, NTRO, ITBP. All these full forms I will give you. So just note down these full forms for your knowledge. That cannot be asked in exam, but for your knowledge just note down. What is the full form of DNA? The full form of DNA is Daily News and Analysis. यानी कि कोई भी न्यूज़ हैं डेली के, वो डेली के न्यूज़ तो आएंगे और उसको एनालाइज भी करेंगे, यानी कि उसकी गहराई तक जाएंगे, रिसर्च करेंगे उस न्यूज़ के बारे में. सो द फुल फॉर्म ऑफ DNA इज Daily News and Analysis. You might have seen the program on Z News. DNA न्यूज़ चैनल पर आता है ये 9 o'clock I think 9 PM by Sudhir Chaudhary. Okay, the name is DNA. So this report was published in DNA on Monday, November 5. The date is November 5 and the year is 2012. The time is 7:49. 1949 means 7:49 PM. Okay, what is the meaning of IST? IST means Indian Standard Time. Indian Standard Time. You will tell, ma'am, what is the use of IST? See students, आप लोगों ने पढ़ा होगा लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स चेंज होते हैं तो 5 मिनट्स का चेंज आता है टाइम में. ओके, यानी कि हमारे अहमदाबाद से लेकर अगर कोलकाता तक जाओगे तो टाइम में चेंज आएगा, बिकॉज जो भी लॉन्गिट्यूड्स है वो चेंज होंगे तो 5 मिनट से वो एक्सटेंड होती जाती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ओके, तो IST की ज़रूरत क्यों है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की, कि कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम्स ना हो टाइम में, इसीलिए एक स्टैंडर्ड टाइम निकाला गया है. ओके,
So IST means Indian Standard Time and the place is New Delhi. DNA कहाँ से पब्लिश हुआ है? न्यू दिल्ली से. एंड द रिपोर्ट इज गिवन बाय PTI. एजेंसी कौन है? PTI. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PTI? मीनिंग नहीं, फुल फॉर्म ऑफ PTI इज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया. प्रेस यानी कि जो ये रिपोर्टर्स वगैरह जहाँ पर काम करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड प्रेस. PRESS. प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, PTI, and it is a news agency. Understood all the words? Till now I have explained you only the title and the title which is given in activity 1. What is DNA, when it was published, what is the IST, what is the full form of PTI. So you have to keep all these things in mind because एनीथिंग कैन बी आस्ड. फुल फॉर्म है वो ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछे जा सकते, लेकिन MCQs में हो सकते, मैचिंग में हो सकते. ओके, सो कीप ऑल दिस थिंग्स इन माइंड, रिमेंबर इट वेल. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रिपोर्ट. व्हाट इट इज गिवन? फर्स्ट लाइन, आर्मी ट्रूप्स इन इंडिया हैव रिपोर्टेड more than 100 sightings of unidentified flying objects, in short UFOs, in the last 3 months. See, the main title is given in the first paragraph. Army troops. Troops means the group of soldiers on duty. जो soldiers duty पर हैं उनका जो group है, that is called troops. Army troops in India have reported more than 100 sightings of UFOs in the last 3 months. Means in last 3 months army troops of India, they have seen 100 sighting. They have seen 100 UFOs in last 3 months. यानी नवंबर में ये रिपोर्ट लिखी जा रही है, नवंबर से पहले 3 months में इन्होंने 100 UFOs देखे हैं. Understood? First paragraph. Second paragraph, agencies including the Army, DRDO, NTRO and the ITBP have not yet been able to identify this luminous flying objects. Try to understand. I am going very slow to explain each and every word. So एजेंसीज इंक्लूडिंग द आर्मी, यानी कि आर्मी के साथ और दूसरी भी एजेंसीज हैं. कौन कौन सी एजेंसीज हैं? DRDO. DRDO. What does it mean? What is the full form of DRDO? Write down. I am giving you the full form of DRDO. DRDO means Defense Research and Development Organization. I repeat, the full form of DRDO, Defense Research and Development Organization. Defense Research and Development Organization. Okay, दिस इज़ DRDO. अब ये एजेंसी है वो इंडिया के डिफेंस के लिए काम करती है और डिफेंस में और रिसर्च भी होता है, डेवलपमेंट भी होता है डिफेंस का, इसके लिए ये एजेंसी काम करती है DRDO. NTRO. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NTRO? N means national, T means technical, R means research, O means organization. National Technical Research Organization is called NTRO. ये है एजेंसी, वो इंडिया के जो भी टेक्निकल रिसोर्सेज हैं उसमें रिसर्च करती है और उसे डेवलप करती है. NTRO. ओके, NTRO का काम क्या है? जो टेक्निकल चीज़ें हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं डिफेंस के लिए, उसके लिए वो रिसर्च करती हैं. देन नेक्स्ट वन इज़ ITBP. ITBP.
ITBP means I means Indo, INDO, Indo. T means Tibetan, B means border, P means police. ओके, इंडो तिबेटन बॉर्डर पुलिस. आप लोगों को पता होगा तिबेट है, इंडिया की बॉर्डर पे है ना, चाइना तिबेट ये सब. तो वहाँ पर जो पुलिस है बॉर्डर पर, उसे बोला जाता है ITBP. अंडरस्टूड? ऑल द फुल फॉर्म्स यू गॉट, DRDO, NTRO and ITBP. So along with the Army of India, DRDO, NTRO and even ITBP, they have not been able to identify this luminous means reflecting bright light, जो उजाला देते हैं, luminous flying objects. यानी कि एजेंसीज हैं DRDO, NTRO, ITBP एंड इवन आर्मी, they could not identify this UFOs. ये क्या चीज़ है वो अभी तक वो फाइंड आउट नहीं कर पाए, जबकि ये सारी एजेंसीज के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है. कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, दैट वी विल सी इन नेक्स्ट पैराग्राफ्स. सम लोकल पीपल बिलीव दे आर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स who have come to earth from outer space. Some local people means आपके हमारे जैसे लोग. Some local people believe that they are extraterrestrials. Extraterrestrial means outside the earth. वो लोग अर्थ के नहीं हैं, वो लोग outside the earth हैं. Some local people believe they are extraterrestrials who have come to earth from outer space. कुछ लोकल पीपल है वो क्या बिलीव करते हैं, दे आर बिलीविंग दैट द पीपल दे आर द UFOs आर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स. वो कोई दूसरे ग्रह से आए हैं अर्थ पर. आउटर स्पेस मीन्स बाहर के ग्रह से आए हैं. जैसे प्लैनेट हमारा अर्थ है, ऐसे कोई दूसरे प्लैनेट से वो लोग यहाँ पर UFOs में आ रहे. UFO उनका व्हीकल है जिसमें वो लोग बैठे हैं, एलियंस. ओके, ये लोकल पीपल ये बिलीव करते हैं, but till now there is no proof of that. Understood first and second paragraph? Now third one, army officials said that the 17 corps has sent reports to the army headquarters about the sightings of UFOs by an ITBP unit. आर्मी है हमारी बहुत ही तेज़ है, बहुत ही एक्टिव है. क्यों उन्हें एक्टिव रहना पड़ रहा है, ताकि आसपास के कंट्री में से कोई हम पर, देश पर, कंट्री पर, लोगों पर अटैक ना कर दे. सो दे आर वेरी एक्टिव डे एंड नाइट. सो आर्मी ऑफिशियल्स सेड दैट द 17 corps CORPS, इट मीन्स मिलिट्री यूनिट. एक मिलिट्री यूनिट को बोलते कॉप, एंड ईयर 17 corps मीन्स 17 मिलिट्री यूनिट्स ने रिपोर्ट भेजा है. यानी कोई एक इंसान ने या एक यूनिट ने नहीं देखा है ये चीज़ें. 17 corps हैज सेंट रिपोर्ट्स टू द आर्मी हेडक्वार्टर्स अबाउट द साइटिंग्स ऑफ UFOs बाय एन ITBP यूनिट. यानी कि 17 मिलिट्री यूनिट ने ये रिपोर्ट आर्मी हेडक्वार्टर्स में भेजा है कि उन्हें UFOs दिखे हैं बाय एन ITBP यूनिट. ITBP यूनिट आपको मैंने बताया इंडो तिबेटन बॉर्डर पुलिस, वहाँ पर देखे गए हैं. यानी इंडो तिबेटन बॉर्डर पुलिस के 17 corps ने ये रिपोर्ट आर्मी हेडक्वार्टर्स में भेजा है कि दे हैव सीन द UFOs. Reports suggested that these yellowish spheres appeared to lift off from the horizon and slowly traverse the sky for 3 to 5 hours before disappearing. Reports suggested that, देखो यहाँ पर हम लोग सोर्स और रिपोर्ट्स नाम ले रहे, किसी इंसान का नाम नहीं ले रहे क्योंकि कंफर्म नहीं है या उस इंसान ने कुछ कहा नहीं है अपना नेम पब्लिश करने के लिए.
Okay, so reports suggested that these yellowish spheres means round objects, okay, yellowish यानी कि येलो कलर के, appear to lift off from the horizon and slowly traverse the sky for 3 to 5 hours. यानी कि वो horizon से राइज करते हैं, वहाँ से दिखाई देते हैं और धीरे धीरे स्लोली दे ट्रेवर्स मीन्स travel through the area, travel through the sky for 3 to 5 hours before disappearing. यानी कि हॉराइजन से दिखते हैं और 3 to 5 hours वो स्काई में चक्कर काटते हैं और वो डिसअपियर हो जाते हैं. अंडरस्टूड? इंटरेस्टिंग ना, मज़ा आ रहा है ना. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ इज द ऑफिशियल्स कन्फर्म्ड दैट these UFOs were not planes or satellites. जो ऑफिशियल्स हैं, अथॉरिटी वाले, ये जो ये साइटिंग्स के लिए रिसर्च कर रहे हैं, दे कन्फर्म्ड दैट द UFOs मीन्स अनआइडेंटिफाइड मीन्स जिसे पहचाना नहीं गया है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स वर नॉट प्लेन्स और सैटेलाइट्स. कोई प्लेन नहीं है, कोई सैटेलाइट नहीं है. कभी कभी हम लोग आसमान में दिखते हैं ना, रॉकेट दिखता है जो वाइट कलर का धुआं छोड़ता है. ओके, प्लेन्स भी होते हैं, सैटेलाइट्स भी होते हैं जो देखा जाता है टेलीस्कोप से. ओके, तो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने क्या कंफर्म किया है कि दिस UFOs वर नॉट प्लेन्स और सैटेलाइट्स. They said Army had also moved a mobile ground-based radar unit and spectrum analyzer to verify the identity of the object, but could not detect the object that was being tracked visually, indicating it was non-metallic. They said Army had, they means officials said Army had also moved a mobile ground-based radar unit. रडार क्या है? जो आप रेडियो वेव से किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो फाइंड आउट करता है. रेडियो वेव्स क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देता है तो उसकी जो साउंड होती है ना, उसकी वजह से वो पोजीशन है उसे कैच कर लेता है रडार. अंडरस्टूड? तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो मैंने आपको फर्स्ट सेकेंड पैराग्राफ में कहा ना कि वो लोग अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करते हैं जो अनआइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स है उसे फाइंड आउट करने की कि ये चीज़ है क्या. ओके, तो ऑफिशियल्स ऐसा भी बोल रहे कि आर्मी ने मोबाइल ग्राउंड बेस्ड रडार यूनिट यूज़ किया. दे यूज द रेडियो वेव्स टू फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ UFOs एंड अ स्पेक्ट्रम एनालाइज़र. स्पेक्ट्रम एनालाइज़र मतलब कि हमें पता है कि किसी चीज़ का कलर होता है तो वो चीज़ हमें दिखाई देती है, अगर वो कलरलेस है तो हमें दिखाई नहीं देती है. ओके, तो स्पेक्ट्रम एनालाइज़र है ना, वो कलर बेस्ड आइडेंटिफिकेशन करता है. यानी कि अगर किसी चीज़ का कलर है तो वो उसे आइडेंटिफाई करेगा. और जबकि हमने यहाँ पर देखा कि येलोइश स्फीयर्स हैं, मतलब कि उसका कलर येलो है, उसकी लाइट है. ओके, तो स्पेक्ट्रम एनालाइज़र भी वो चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकता है क्योंकि वो कलर बेस्ड आइडेंटिफिकेशन करता है. अगर किसी चीज़ का कलर है तो वो उसे पकड़ लेगा. ओके, और लोग बोलते हैं येलोइश स्फीयर्स है, जिन्होंने भी ये देखे हैं वो सब बोल रहे हैं कि येलोइश स्फीयर्स हैं, इट मीन्स उसका येलो कलर है. फिर भी स्पेक्ट्रम एनालाइज़र है वो इसे डिटेक्ट नहीं कर पाया. ओके, so understood what is radar and what is spectrum analyzer. Radar is a device using radio waves to find out the position of the object which cannot be seen, and spectrum analyzer is an equipment which uses the colors to identify the object. Okay, so Army had also moved a mobile ground based radar unit and a spectrum analyzer to verify the identity of the object. ये ऑब्जेक्ट यानी कि UFOs की आइडेंटिटी फाइंड आउट करने के लिए रडार और स्पेक्ट्रम एनालाइजर भी यूज़ किए, बट could not detect the object that was being tracked visually. But both the devices they failed. They could not detect the object
दैट वॉज बींग ट्रैक्ड विजुअली, जो विजुअली यानी कि हम लोग खुली आंखों से देख सकते बिना कोई मशीनरी के, बिना कोई इंस्ट्रूमेंट के, वो चीज़ को रडार और स्पेक्ट्रम एनालाइजर भी ट्रैक नहीं कर पाए, डिटेक्ट नहीं कर पाए कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, इंडिकेटिंग इट वॉज नॉन मेटेलिक, जो बता रहा है कि ये यूएफओज हैं वो नॉन मेटेलिक हैं, मतलब कि मेटल से बने हुए नहीं हैं। सोचो क्या हो सकता है, मेटल से बना हुआ नहीं है, अगर मेटल से बना हुआ होता तो ये दोनों चीज़ के अंडर में वो डिटेक्ट कर पाता है दोनों मशीन्स, लेकिन वो नॉन मेटेलिक है। सो फैक्ट क्या है कि यूएफओज हैं वो नॉन मेटेलिक हैं। अंडरस्टूड दिस मच? नाउ नेक्स्ट वन, Army officials expressed concern over the inability of agencies to identify the objects। मतलब कि आर्मी ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने ये जो एजेंसीज़ हैं जो रडार और स्पेक्ट्रम एनालाइज़र यूज़ करती हैं वो भी ये डिटेक्ट नहीं कर पाई, उसके लिए काफ़ी सारा कंसर्न रखा है। उन्होंने देखा कि ऐसा क्यों हुआ है। some believed they could be सर्वेलेंस इक्विपमेंट और वेदर इंस्ट्रूमेंट्स। कुछ लोग ऐसा बिलीव करते हैं दे कुड बी सर्वेलेंस इक्विपमेंट। सर्वेलेंस मीन्स आपके यहाँ पर सीसीटीवी कैमराज होंगे सोसाइटीज़ में, फ्लैट्स में, ओके। तो सर्वेलेंस मतलब कि केयरफुल वॉचिंग, किसी भी चीज़ की बहुत ही केयरफुल उस पर वॉच रखना, दैट इज़ कॉल्ड सर्वेलेंस इक्विपमेंट और वेदर इंस्ट्रूमेंट्स। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि वो ये कोई केयरफुल वॉच रखने के लिए कोई इक्विपमेंट है या वेदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसे इक्विपमेंट्स हैं तो वो मेटल्स के बने हुए होने चाहिए, है ना। बट रडार और स्पेक्ट्रम एनालाइजर उसे डिटेक्ट नहीं कर पाए और उन्होंने बताया कि ये नॉन मेटेलिक हैं, ओके। तो मतलब कुछ भी हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते कि व्हाट इज़ द थिंग इट इज़। सोर्सेस सेड दैट, सोर्स याद रखना ये वर्ड, बाद में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। सोर्सेस सेड दैट सिमिलर रिपोर्ट्स वर मेड 5 or 6 years ago अबाउट साइटिंग्स ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स बट द मैटर वॉज नेवर टेकन अप एट हायर लेवल्स। सोर्सेस मतलब आप लोगों ने सुना होगा, न्यूज़ सुनते हो या पेपर भी पढ़ते हो तो सूत्रों के अनुसार, ओके, सूत्रों ने बताया है कि, सूत्रों के अनुसार मतलब सोर्सेस। सोर्सेस मतलब सूत्र, स्रोत, जहाँ से कोई चीज़ आपको पता चलती है। क्यों ऐसे सोर्सेस वर्ड यूज़ किया जाता है वो बताऊंगी मैं बाद में। तो sources said that similar reports were made 5 or 6 years ago about sightings of such objects। यानी कि 2012 में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उससे पहले 5-6 years ago also such similar reports were made but the matter was never taken up at higher levels। लेकिन ये जो मैटर है जो UFOs का, साइटिंग्स ऑफ UFOs, वो अभी तक हायर लेवल पर नहीं लिया गया है, यानी कि उसे साइड में रख दिया है। अभी कोई उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहा है क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो इसे डिटेक्ट कर पाए। अंडरस्टूड? सो दिस वॉज एक्टिविटी 1। आई होप यू अंडरस्टूड एंड एन्जॉयड अ लॉट, क्योंकि ये आपकी नॉलेज को और इंक्रीज कर रही है, ओके। सी, this reading is derived from PTI article published in November 2012। यानी कि ये रीडिंग है, ये आर्टिकल है वो PTI में से लिया गया है नवंबर 2012 में। नाउ सी हियर, look at the last line of the article. It says sources said that similar reports were made 5 or 6 years ago and so on। ओके, ये चीज़ मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की ना, सोर्सेस। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं? बिकॉज न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स ऑफन यूज द वर्ड सोर्स और सोर्सेज विदाउट आइडेंटिफाइंग द नेम ऑफ द सोर्स।
यानी कि किसके द्वारा ये पता चला, किसने ये बताया, वो सोर्स को आइडेंटिफाई नहीं करना है, उसका नाम पब्लिश नहीं करना है, बिकॉज समटाइम्स पीपल डू नॉट वांट देयर नेम्स पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, कुछ मैटर ऐसे होते हैं कि जिसमें लोग हैं अपना नाम है वो पब्लिश करवाना नहीं चाहते न्यूज़पेपर में, तो वो नेम्स की जगह पर, सपोज़ मैंने कुछ कहा है यूएफओस के बारे में, मैं नहीं चाहती कि मेरा नाम पब्लिश हो, तो वहाँ पर रिपोर्टर्स हैं वो मेरे नाम की जगह पर क्या लिखेंगे, सोर्सेस। ओके, सो सोर्स एंड सोर्सेस, पता चला ना व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूजिंग दिस वर्ड्स। Sometimes these are identified as anonymous sources, which just means sources who don't want to be named. Okay, कितनी बार sources की जगह पर anonymous का मीनिंग है unidentified. Okay, जो source है वो अपना नाम है वो किसी को बताना नहीं चाहते, that is called anonymous sources. Last one is, if one question is given, if your words were published in a newspaper, would you want to publish your name or would you be anonymous? यानी कि अगर आपके कुछ वर्ड्स हैं, अगर सपोज हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा, वी हैव सीन दैट सम पीपल्स दे गेव देयर रिव्यूज़, देयर पॉइंट्स ऑफ व्यू रिगार्डिंग द ट्रैफिक सिचुएशन इन जालंधर सिटी। एक स्टूडेंट था, एक ट्रैफिक पुलिस था और एक ऑफिशियल था एमसीजे का। अगर इस तरह का कोई रिपोर्टिंग हो रहा है और अगर आपसे कुछ पूछा जाए तो क्या आप अपना नेम है वो पब्लिश करवाना चाहोगे न्यूज़पेपर में, या आप भी एनोनिमस ही रहोगे? व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो सीधा साधा सा आंसर है कि अगर कोई बहुत ही रिस्की टॉपिक नहीं है तो हम अपना नेम पब्लिश करवाएंगे, हमें अच्छा लगेगा कि चलो हमारा नेम है वो पेपर में पब्लिश हुआ। लेकिन अगर कुछ डिबेटेबल टॉपिक है या कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है या हम किसी मुसीबत में फंस सकते हैं, ऐसे कोई टॉपिक में हमने अगर हमारा व्यू दिया है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, तो हम लोग उसे एनोनिमस ही रखेंगे। यानी कि वहाँ पर न्यूज़पेपर वाले हमारा नेम है वो पब्लिश नहीं करेंगे, वहाँ पर वो लोग क्या यूज़ करेंगे, सोर्सेस सेड दैट। अंडरस्टूड? सो व्हाट इज़ एनोनिमस, व्हाट इज़ सोर्स, व्हाट इज़ रिपोर्ट, ये सब आपको पता चला होगा। ओके, नाउ एक्टिविटी 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। UFO स्टैंड्स फॉर अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। व्हाट डज अनआइडेंटिफाइड मीन? अनआइडेंटिफाइड का मीनिंग क्या है? अनआइडेंटिफाइड मीन्स विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, जिसे हम लोग नेम नहीं दे सकते कि ये चीज़ क्या है। कैन यू आइडेंटिफाई दिस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट? दिख रही है ना ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, सबको दिख रहा होगा। ओके, क्या नाम दोगे आप? व्हाट डू यू थिंक इट इज़? क्या नाम दोगे आप उसको? वो क्या हो सकता है? तो जनरली हम लोग बोलते हैं फ्लाइंग सॉसर, उड़ती रकाबी बोलते हैं ना गुजराती में, फ्लाइंग सॉसर। ओके, now here this activity you cannot do activity 2 because you have to work with your partner or a group, but you can discuss this picture with your friend or with your siblings. Okay, पार्टनर या ग्रुप में आप ये नहीं कर सकते हो तो आप अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ आप ये डिस्कस कर सकते हो। ओके, वेयर डिड इट कम फ्रॉम, वाई इज इट देयर, ये सब आपको करना है। आफ्टर दैट आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो क्लासमेट्स के सामने ये भी पॉसिबल है नहीं। ओके, सो लीव इट। ओके, so in today's lecture we have completed activity 1 and 2. Now in next lecture I will start with activity 3. Okay, so for today that's all. We have completed today's lecture. Now we will meet in next lecture. Till then, bye.